something with which you start connecting with me. So if I take myself back 10-15 years back, while I was sitting on the chair where you are sitting today, I am an MBA by profession. So while I was sitting on the other side of the chair in one of the orientation programs, there were certain thoughts that were going in my mind. Like I came out of my house for the first time. So earlier we used to stay with parents. यहाँ काफी बच्चे ऐसे होंगे जो घर से पहली बार आए हैं, पहली बार बाहर निकले हैं. They must be facing certain set of challenges that they are facing for the first time in their lives. Let it be an interactive session between you and me. So at the end of the session, we become friends. So I try and cover certain challenges that you guys are facing in your respective lives at the moment. जब मैं घर से बाहर पहली बार आया, मेरे को first चीज जो पता लगी, I was facing some emotional challenges. If that's your story too, please try and respond. So the first challenge that I was facing was the emotional challenge. Like once you stay at your home, you throw a lot of melodrama. You are staying with your mother, staying with your sister, your brother, your father, who really care for you. तो आप बोलते हैं मैं करेला नहीं खाऊंगा, आप बोलते हैं मैं भिंडी नहीं खाऊंगा, आप बोलते हैं मैं आलू की सब्जी बिल्कुल नहीं खाने वाली. लेकिन जब आप यहाँ घर से बाहर निकलते, जब यहाँ आते हैं, then you realize कि खाना मिल रहा है वही बहुत है. Am I right on that? Not so many people shifted out here for the first time. You came out for the first time out of your home, staying in a PG, staying in a paid apartment, or wherever you're staying alone. Now you are not staying with your family members. You go through certain emotional challenges. You face that fear of pressure. I belong to a small place, I belong to a small town. Once I came to Delhi for the first time, I was facing certain set of challenges. What were those challenges? I scored 86% in my 12th. So once I came to Hansraj College, Delhi University, the moment I walked into Hansraj College, the environment was pretty good, but I was pretty less confident to face those people because they were really good. I was coming from a small town, छोटे शहर से मैं आता था. जब यहाँ पे देखा लोग branded jeans पहन के, they are talking impeccable English. They were talking impeccable English, and that really hampered my confidence somewhere or the other. I thought, I don't know how do I go out and compete with these people. मैं लोगों से कैसे compete करूँ? So I started realizing the fact that apart from the curriculum that I have, am I audible to you people without the mic? Round of applause to the mic. It is not important for the mic to be connected, it is important for us to be connected amongst ourselves. Give it up for yourself first. So जब मैं first time Delhi आया, I entered the college premise, and the scenes were really scary for me. There were people who were wearing pretty jazzy clothes with impeccable communication skill, impeccable confidence. मेरे दिमाग में ये बात आई कि मैं अपने आप को उस ग्रुप में कैसे खड़ा कर पाऊं. क्या ये आपका भी चैलेंज आता है, आ सकता है? Do you feel a little less confident? So I realized that curriculum is not everything. Everything is not studies. You need to have certain exposure in life. So I started participating in debating activities in the college. I fought elections in Delhi University in my times. I was heading the chess team for Hansraj College. It was my privilege to play chess against Mr. Viswanathan Anand. Now you must have heard of Hansraj College. Hansraj College वही कॉलेज है जहाँ पे शाहरुख खान पढ़ते थे. वो मेरे बैचमेट तो नहीं थे, लेकिन मेरे सीनियर थे. I have never met him, but he came to the college once. So I feel proud to share this, you know. So if my alma mater is producing some good people, some unstoppable people, that's a matter of pride for me. So coming back to point. So I said what to do. So focusing on exposure, started participating in a lot of other activities. Once I was playing chess against Viswanathan Anand. He was the rapid chess champion. आप सब हिंदी में सब में comfortable हैं? Are you able to understand what I'm saying? तो उस टाइम क्या हुआ ना? There's a learning out here, okay? जब मैंने chess खेलना आनंद साहब के साथ शुरू किया, I really knew that he is the world champion, and I'm a novice in the chess fraternity. Of course, I'm supposed to lose the match. लेकिन you give your best, okay? So जब वो आए थे तो काफी pomp and show था college. There were a lot of people who were squatting in the class, you know. तो जब
match खेल रहा था, there were 16 boards, 8 on that side, 8 on this side. He was coming and moving and playing rapid. I don't know how many people out of you are aware of rapid round of chess, where it is half an hour clock. So while he was coming and moving, he was just making his move and going. So while after losing the match, once I came out of the place, to my surprise, the people who were no professional chess players, who were my friends, who were escorting विश्वनाथन आनंद, they started suggesting me moves. उन्होंने मेरे को कुछ ऐसे moves बताए जो मैंने उस टाइम पर ध्यान नहीं बोला कि मैंने सोचा कि चलो we live in a country of काका बाबूज anyways. People will sit on their sofa couch in their drawing room saying धोनी should retire. हमारी तो कंट्री काका बाबू की कंट्री है. लोगों ने बोला तेंदुलकर should retire, but they don't understand the embodiment of work that they have at the back end. So I realized that hey, these people are telling me a professional move while I am playing with the current chess world champion. I did not pay them attention. I thought ऐसे ही बोल रहे हैं. लेकिन जब मैं घर जाके उनके moves को सोचना शुरू किया, because of course as a professional chess player you analyze situations, you analyze moves. Once I came back, I realized that hey, what these people were telling me, the moves, they were actually right. If I would have done that move, at least I would have played a draw, you know. Then I realized I'm a professional. Just think of the mindset. I thought I'm the professional chess player. These people are just the escorts who are roaming with him, who were just watching me play. These people even did not get selected in the chess team of Anthraj College. Now these people are making some moves, telling me some moves, which is proving out to be better than what I did in my dartboard. Then I realized, and there's a learning out here for all you people. The learning is, I realized that once you see these situations as an onlooker in your life, what is the purpose of meditation, by the way? आपने कुछ सुना meditation का result है क्या है? ये सारा आपको मुझे बताया. What is the result? The result is once you close your eyes, sit with yourself, count from 1 to 20 and 20 to 1, your mind reaches alpha state. Once your subconscious mind start giving directions to your conscious mind, saying go for the goal. And one of the purposes of meditation is you sit with yourself और अपने thoughts को बाहर निकाल के देख पाते हो. You know, you can actually see your thoughts, what's happening in your mind. हम जब control of mind की बात करते हैं, I can tell you, I talk a little controversial, but I'm a firm believer of the fact that you cannot control your mind. Lot of people, wherever I've said this, people come and create controversy that Amish you know nothing, but this is what my firm belief is. जब हम कंट्रोलिंग माइंड की बात करते हैं ऑन अ डे टू डे बेसिस, एक इंसान, आपके और मेरे जैसे इंसान के दिमाग में हर दिन 50,000 से 60,000 थॉट आते हैं. एवरी डे वी गेट 50 to 60,000 थॉट्स. अब जब मैं आपसे अभी भी बात कर रहा हूँ, आई एम श्योर 90% पीपल आर सिटिंग इन द रूम फिजिकली, बट देयर माइंड इज समवेयर एल्स. ये सेशन कब खत्म होने वाला है, इसके बाद क्या होने वाला है, घर पे क्या खाना बना है, इसके बाद मेरे को कहाँ पे जाना है, कौन सा ज्वाइंट अच्छा है, कौन सा फूड ज्वाइंट में जाना है. सो वी टॉक ऑफ कंट्रोल ऑफ माइंड, यू नो. सो आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ द फैक्ट दैट if on a day-to-day basis, as a behavioral scientist, as per a behavioral scientist, they say that a human mind, like you and me, they say you all have the hardware called brain, but do you have the software called mind? That's the question I'm asking. Do you have a way out to run the PPT? We have a small PPT. So I don't know whether we can forget it. So coming back to point, I said 50 to 60,000 thoughts per day. Can you control it? And the crux of the matter is, वो जो thoughts आपके आते हैं उसमें से 90% thought negative होते हैं. और हम आपको सिखाते हैं, एक मोटिवेशनल ट्रेनर यहाँ पे आता है, आपको बोला पॉजिटिव सोचो. आप कैसे पॉजिटिव सोचने वाले हैं? Because the auto trigger of mind, the conditioning of mind, it happens how? There are 3 ways your mind is conditioned. आप जब मेरी बात नहीं समझेंगे, in my sessions you have all the flexibility to get up and say Amish, you repeat, or I don't agree with you, that's perfectly okay, and we will learn together. Okay, so I come and tell you that hey, you think positive. लेकिन आप पॉजिटिव सोचने की कोशिश करते हैं, आप पॉजिटिव सोच नहीं पाते. क्या आपके साथ ऐसा होता है? तो इसका रास्ता क्या? एक मोटिवेशनल ट्रेनर यहाँ पे आके आपको बोलेगा पॉजिटिव सोचो, सोचने से बहुत अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, आपकी अच्छी जॉब लगेगी, आपका अच्छा कॉर्पोरेट लाइफ होगा, यू विल मेक अ लॉट ऑफ मनी इन योर लाइफ. लेकिन आप पॉजिटिव सोच नहीं पाते. व्हाट इज द रीजन? वी हैव टू डिग डाउन डीप, गेट इनटू द रीजंस व्हाई दिस हैपेंस. You know, so if you realize it, we'll come to know
दैट हमारी जो कंडीशनिंग है माइंड की, हमारे समाज में बोलते हैं एक बच्चा जब 14 साल का हो जाता है तो वो 1,14,000 बार ना ऑलरेडी सुन चुका होता है। ये मत कर, वो मत कर, यहां मत जा, वहां मत जा, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। सो द ऑटो ट्रिगर ऑफ माइंड of a person who is belonging to a society like you and me, उसके माइंड का ऑटो ट्रिगर नो है। अगर मैं जब आपको बोलता हूं ये बात कि आप मेरे सेशन को बिल्कुल ध्यान से सुनना, तो आपका दिमाग पहले क्या करता है, मेरे को ध्यान से सुन के फायदा क्या, अगले घंटे में क्या हो जाएगा। Nothing wrong with you people, it is the conditioning that we are talking of, okay? तो solution क्या है फिर? So मैंने बोला बता, आपको फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या बताया, on a day to day basis you get 50 to 60,000 thoughts in your mind. It is not easy for you to control your mind, but what works in your favor, आपके फेवर में क्या चीज काम करती है, बोलते हैं जो पॉजिटिव थॉट की इंटेंसिटी और पावर है, it is way more than a negative thought, because it is giving you happiness, it is giving you pleasure. So आप ना पॉजिटिव थॉट पे थोड़ा इम्फेसिस करके सोचना स्टार्ट करो। वो भी इतना 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 आसानी से पॉसिबल नहीं है, उसके लिए आपको कुछ हैबिचुअल चेंज करने पड़ेंगे। आपने लाइफ में देखा होगा प्रोग्रेशन ऑफ लाइफ। आप जब बिल्कुल छोटे बच्चे थे, आप जब प्ले स्कूल जाते थे, यू वर कंप्लीटली केयर फ्री। यू हैव सीन अ टाइम, जो भी बच्चे यहाँ बैठे हैं उन्होंने एक टाइम देखा अपनी लाइफ में, हम सब ने देखा, जब हम 3 साल से छोटे थे, जब हम 3 साल छोटे थे तो हमारे पास काम क्या था, सिर्फ खेलना काम था, कुछ काम नहीं था हमारे पास। लेकिन जैसे जैसे लाइफ आगे जाती गई, आगे बढ़ती गई, हमारी उम्र बढ़ती गई, लाइफ स्टार्टेड थ्रोइंग सर्टेन सेट ऑफ चैलेंजेस ऑन अस। जब हम बिल्कुल छोटे थे तो वी वर जस्ट बॉदर्ड अबाउट प्लेइंग, नॉट बीइंग अकाउंटेबल टू एनीथिंग, नॉट इवन कि हमें चोट ना लगे इसकी जिम्मेवारी भी मम्मी पापा की होती थी। यू रिमेंबर दैट? लेकिन आप जैसे जैसे आगे बढ़े, 3 से 4 साल के आए, तो आपने क्या सीखा कि आप एक स्पेसिफिक टाइम पे आपको स्कूल ड्रेस पहन के स्कूल चले जाना है। आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आ गया। Am I right on that? Are you on the same page? उससे थोड़े आगे बढ़े तो आपको किसी ने बताया कि अच्छा आप 10th क्लास में आ गए हो, इट इज मोस्ट वाइटल टाइम ऑफ योर लाइफ। ओके, फिर आप 12th में आए तो आपको क्या बताया गया कि नाउ इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम, वंस यू आर मेकिंग चॉइसेस। हियर इज द लर्निंग आउट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम इन द कंट्री। 12th क्लास में आपको ये बोला गया कि आप अपने सब्जेक्ट चूज करो, यानी आपकी लर्निंग क्या होनी चाहिए कि जैसे जैसे मैं लाइफ में मेरी उम्र बढ़ेगी, आई हैव टू मेक माय ओन चॉइसेस। एम आई राइट ऑन दैट? जैसे जैसे आपकी लाइफ आगे बढ़ती जाएगी, यू विल हैव टू मेक योर ओन सेट ऑफ चॉइसेस, एंड बेस्ड ऑन द चॉइसेस दैट यू मेक फॉर योरसेल्फ, you will derive results out of that. I call a spade a spade. I'm sorry I talk a little controversial, लेकिन कुछ बच्चे 15-16 साल में सीरियस हो जाते हैं। They reach out to the tier B institutions of the country. They go to IIMs Ahmedabad, they go to MBI Gurgaon, they go to IIT Ghaziabad, they go to ISB Hyderabad. तो अभी आप लोग एक टाइम पे सीरियस नहीं हो, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है that you will never get serious। लेकिन जब टीयर बी कॉलेज के बच्चे थोड़े सीरियस होते हैं तो उनको लगता है, क्योंकि अगर आप अहमदाबाद से आते हैं, you get a job into say Procter and Gamble as the management trainee at a package of say 14-15 odd lakh rupees. In 2 years down the 2 साल के बाद you are the senior manager at a package of 20-30 lakh rupees। लाइफ थोड़ी ईज अप हो गई, आपने पहले मेहनत की, उसका रिजल्ट आना शुरू हो गया। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो बच्चे आईआईटी में पढ़ते नहीं हैं वो सीरियस होते नहीं। I am a firm believer of the fact that you all have come here with the rightest intention. How many people sitting out there in the room right now, they think, they believe that they have a flourishing career ahead of them? Is there anybody in the class? Do you understand my question? कौन से बच्चे ऐसे, कोई क्लास में कोई ऐसा बच्चा बैठा है जो ये सोचता है कि मेरा आगे बहुत फ्लरिशिंग करेगा, है, बहुत ग्रैंड लाइफ है? ऐसा कोई बच्चा बैठा है क्लास में? You guys don't think that? Yes sir. तो आप क्या सोचते हो मेरे यार बिल्कुल बेकार होने वाली है? बिल्कुल बेकार, मैं तो पढ़ा मिलूंगा कॉर्पोरेट में, सोचते हो क्या? You have to have that utter faith in yourself, my friend. Who said yes sir? What's your name please? Give him a round of applause please. Leadership is about proactive. Proactive आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आपकी लाइफ अच्छी होगी? आपने ऐसा क्या किया कि आपकी लाइफ अच्छी होगी? Because of sir, I मतलब अच्छा लाइफस्टाइल के लिए सर। आपको अच्छी लाइफस्टाइल क्यों मिली है? See, the question is deeply rooted. I'm telling you that. Okay? तो आपको अगर लगता है कि मेरी लाइफ अच्छी होनी चाहिए, तो क्या आप वो काम करते हैं जो आपको करना चाहिए? Yes sir. जैसे क्या? सर अभी तो मैनेजमेंट सर नए नए आए हैं सर, ऐसे स्पोर्ट्स में से सर हम नेशनल में गए थे सर वॉलीबॉल में।
देखा होगा, जब जब आपने वो सारी बातें की हैं जो आपको अच्छी लगती है, तो आपको वो नहीं मिला जो आपको चाहिए। आई रिपीट, जब जब लाइफ में आपने वो बातें की हैं जो आपको बहुत पसंद आती हैं, तो आपको वो नहीं मिला जो आपको चाहिए। और जब जब आपने लाइफ में वो बातें की जो आपको करने का मन नहीं करता, तो आपको वो मिला जो आपको रियली में चाहिए। Am I right? सक्सेसफुल लोग और अनसक्सेसफुल लोगों में बहुत थोड़ा फर्क होता है, सिर्फ हैबिट्स का फर्क होता है। हैबिट्स, जो नॉट सो सक्सेसफुल लोग होते हैं, मैं वो एग्जांपल देता हूं, जो नॉट सो सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो लोग टीवी नहीं देख के टीवी नहीं देखने की आदत लगाते हैं। लेकिन जो सक्सेसफुल लोग हैं, प्लीज सर। So I would like to add, since the point came in mind, मैं बच्चों एक चीज में ऐड ऑन करना चाहता हूँ सबके स्टेटमेंट को। बेसिकली यू मस्ट बी नोइंग अबाउट मनोज वाजपेयी। ही इज four times NSD rejected person, and you know the quality of the talent he is having in acting. And you can take out the result of civil services every year. There is a survey, there is a report which says that almost 50 to 60%. There are two kinds of people are there. Students are there in this India and this world. One is the talented one who is having a very sharp mind, and another one is mediocre who is very hard working. Okay. So almost 50 to 60% candidates who are selecting in civil services also, they are hard working. They are not talented ones. Okay, that's the way IIT से BTech किया है, फिर आप अहमदाबाद से फर्स्ट अटेम्प्ट में MBA कर लिया, और उसके फर्स्ट अटेम्प्ट में he got it into the top 10 ranking और उसको IAS मिल गया. And these जो mediocre रहते हैं, they are you know they are getting into civil services after a very hard work. I mean कोई third attempt में, कोई fourth attempt में होता है, and they are doing marvelous job when they are getting into IAS or IFS or IPS. They are doing their services for 35 to 36 years. They are doing it very well, very good. And they are even I can say that they are even doing better than those IAS officers who had been top rankers, who had been a very talented student at their IIT level or in IIS level. So सर ने जो बात कही है वो वाकई में सही है. It doesn't matter whether you are God has given you very sharp mind and in the first attempt you can be to whatever you wanted to be. More important is that how many attempts you are making it up. Yes. With the hard work you can do everything. And there is a big opportunity for these hardworking people. Okay, आप किसी भी एग्जाम में देखिए, hardly 10 or 20% people are there who are highly talented. वो आते हैं, अपना बीटेक करते हैं, एमबीए करते हैं, और फर्स्ट अटेम्प्ट में जो करना चाहते हैं वो कर लेते हैं. एंड बट लाइफ इज वेरी बिग लाइफ इज दैट वो बाकी जो 80% 90% जो जगह रहती है, दैट इज बीइंग फिल्ड अप बाय दैट हार्ड वर्किंग पीपल. ओके, कि भाई रगड़ के बीए किया, फिर एमबीए किया, और फिर उसके बाद एमए किया, और उसके बाद ये एग्जाम दिया, वो एग्जाम दिया. दे आर लर्निंग फ्रॉम एवरी स्टेप बाय स्टेप. दे आर लर्निंग इट, एंड दे आर एंड 2, 3, 4 अटेम्प्ट में जो भी एग्जाम whatever they wanted to clear it, they got it. And then but at the end of the day they are the most successful one, and they are even, I can say that they are better than that. I have my own example. One of my brother, he is eldest brother, he is very sharp minded, very talented, and my second brother who is a mediocre, he was a mediocre, but my second brother is a scientist, and my first brother is a government engineer. My father, he used to give an example to all my relatives that ये दूसरा वाला बेटा मेरा है, वो साइंटिस्ट है. He never gives the example of my eldest brother. So, but he was a hardworking, very hardworking, but he was a mediocre. लेकिन अगर आज देखें तो he is successful. Very valid point. Give him a round of applause, please. आपकी लाइफ में आपको क्या लगता है? Who is more important? It's a very आप ना थोड़ा सोच के जवाब देना. Who is more important? A teacher or I'll take a question. One moment. So whose role is more important in life? A teacher or a student? Can you tell me? What's your name, please? What's your name, please? Pooja. Pooja, who is more important? किसका रोल ज़्यादा important लाइफ में? एक टीचर का या एक स्टूडेंट का? स्टूडेंट. क्यों? क्योंकि टीचर का रोल है पढ़ाना, स्टूडेंट का रोल है ग्रैब करना जो टीचर हमें दे रहे हैं. अगर हम पढ़ेंगे ही नहीं तो फिर क्या इम्पोर्टेंस है? Wow, give us a round of applause, please. आपको लगता है टीचर ज़्यादा important
आपको ताली तेज तेज बजानी है। अच्छा ताली बजानी चाहिए क्योंकि मैंने बोला ताली बजानी है, इसीलिए there is a reason behind everything. If you clap and appreciate others, Newton's law बोलता है every action has an equal and opposite reaction. So if you are appreciating people, you are paving way for your own appreciations in life in future. Give it up for yourself and your own dreams, please. मैंने एग्जांपल दिया यूपीएससी का। जब मैं छोटा था बिल्कुल, तो छोटा क्या मतलब जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो लोग बोलते थे तेरा बहुत साफ माइंड है, तू यूपीएससी कर ले, यूपीएससी कर ले, यूपीएससी कर ले। आज जो मेरे को यूपीएससी जो समझ में आया, यूपीएससी मतलब यूनिक प्रोग्राम फॉर स्पॉइलिंग योर करियर। ऐसा यूनिक see UPSC is the most vibrant, they are the administrative people, but you have to do something of your own interest. I am a firm believer of the fact that I have to make my own decisions. So जब मेरे को लगा कि यूपीएससी कर ले, यूपीएससी मतलब यूनिक प्रोग्राम फॉर स्पॉइलिंग योर करियर, फिर मैं बड़ा कंट्रोवर्सी करने लगा। मैं बिकॉज़ ऑफ थिंकिंग ब्रेन, ऑफ फिलोसोफर्स ब्रेन, मैंने सोचा कि यार मेरे काफी फ्रेंड्स हैं जो भी आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस है, तो मैं उनसे बार-बार मजाक करता था कि यार आप ना 20 घंटे पढ़ते हो, ये जो आप पढ़ रहे हो इसका एप्लीकेशन क्या है कल को? आप जब डीएम बन जाओगे, आईपीएस बन जाओगे, आप जब आईएफएस बन जाओगे, जब आप फॉरेन सर्विस में जाओगे, इसकी एप्लीकेशन क्या है? ये इतना पढ़ाते क्यों? इसका लॉजिक मेरे को समझता नहीं था। One fine day I went to Dhey IAS and there this teacher was taking class and I asked him this question and his answer gave me the real response. उन्होंने बताया, आप ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको बहुत तकलीफ आएगी मेरे को ना काफी कॉलेज में काफी क्लासेस कराते हैं, मैं तो थक जाता हूँ, यू नो। तो हमने बोला 20 घंटे आप बोलते अगर आप बहुत टैलेंटेड हो तब भी आप यूपीएससी क्रैक नहीं कर सकते क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा बैठ के, यू हैव नो अदर चॉइस, यू हैव टू बी रियल हार्ड वर्किंग। मैंने पूछा सर ऐसा क्यों है, इसका एप्लीकेशन जब पूछी तो मैं क्यों पढ़ रहा हूँ वो चीज, उन्होंने बोला कि इसका पीछे साइंस ये है एंड देयर इज अ लर्निंग आउटसाइड, ओके, पीछे साइंस ये है कि उसका करिकुलम इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आप अगर 20 घंटे दिन में नहीं पढ़ेंगे तो कोर्स ही खत्म नहीं होगा। आप जब क्रैक करके डीएम बनेंगे, आपकी एक ट्रेनिंग है, इंटर्नशिप ट्रेनिंग है, आप जब एक जिले का डीएम बनेंगे, डिस्ट्रिक्ट का डीएम बनेंगे, आपको 20-20 घंटे काम करना पड़ेगा, इसकी आदत डाल लो। Give it up for them please. This is very very important. You understand that? आपको जब भी ऐसा लगेगा क्लास में कि आज मैं थोड़ा थका हुआ हूँ, मैं आपको वापस बोलता हूँ कि आपको हर बार, ये बहुत गहरी लाइन है, this will change something in me, I'm telling you that, you know, कि आपने जब लाइफ में वो काम किया जो आपको अच्छा लगता है तो आपको वो नहीं मिला जो आपको चाहिए, और आपने जब वो काम किया जो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तो आपको वो मिला जो आपको चाहिए। यू नो व्हाट आई मीन? मतलब आपको पढ़ना अच्छा, क्या सक्सेसफुल लोगों को पढ़ना और काम करना अच्छा लगता है? ऐसा नहीं है, लेकिन वो क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने फार्मूला डिराइव कर लिया। वो बोलते हैं देयर इज नो अदर वे आउट, आई हैव टू बी ऑल इन। आप सबने बचपन में चींटियों के साथ खेला होगा, थिंक अबाउट इट। जब एक चींटी जा रही होती, जब छोटे छोटे बच्चे होते थे, चींटी को यूं करके, चींटी अपने आराम से she was moving and we will just disturb her way. What she'll do? She'll again turn back, again start. हम फिर से वही करते हैं, फिर उसको वापस करते हैं, फिर she'll start moving, you know. फिर वो क्या करेगी? दीवार पे चढ़ना चालू करेगी, चढ़ जाएगी तो फिर हम उसको नीचे में गिराएंगे और फिर we'll enjoy that. लेकिन आपने चींटी को भी ध्यान से देखा, the smallest creature on the planet, one of the smallest creature on the planet, if she can project this unstoppability in her attitude, what are you and me? This is the learning from ant, okay? And have an observatory mind. आपके आसपास क्या चल रहा है? आपको वापस बोलता हूँ, मैं रिपीट किया था कि it is all about your habits. If you cannot change your habits, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आप अगले 15 दिन तक 12 बजे उठेंगे, 16वें दिन आपको 6 बजे उठने में काफी प्रॉब्लम आने वाली है। अंग्रेजी में बोलते हैं attitudes do not care, once you shape it, once it is shaped, they become behavior. यानी आप एक काम बार बार आपका अगर फर्स्ट टर्म में अच्छा रिजल्ट नहीं आया, आपने क्लासेस अच्छी नहीं की, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं, चलो ठीक है और लोग का अच्छा आएगा, नहीं तो दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, इट विल नॉट सॉल्व द पर्पस। दे से यू हैव टू कनेक्ट इट विद एन इमोशन, विद एन इमोशनल ड्रीम, कि अगर आपने एमबीए में एडमिशन लिया, do you understand? I assume that 90% people, 90% लोग बच्चे जो यहाँ बैठे हैं, they are coming in from middle class backgrounds and these are high paid courses.
यानी फीस ज्यादा है। आप सोच के देखो कि आपकी फैमिली ने आपके पिताजी ने कितनी तकलीफ उठाई है। आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ क्रिकेटर। मेरी स्टोरी, मैं एंटरप्रेन्योर क्यों बना, इसकी एक स्टोरी है। द स्टोरी इज वंस आई वाज अ किड, आई वाज एन एक्सेप्शनल क्रिकेटर। जब टीवी पे मैच आता था मैं वहां से हिलता नहीं था कि बाबा मेरे को कुछ भी कर दे, मैं हिलता नहीं था वहां पे। So I could realize that I always wanted to be a cricketer in life. We have 3 brothers. I was seeing the pain my father was taking to get us educated. I could not even run. I was the eldest in the family. I could not even go and tell me, Papa, मेरे को cricket coaching का admission करवा दो. And that pain became the driver for me. Once I grew in life, started working for a job. मेरे दिमाग में बार-बार ये बात आता था कि मेरे पापा ने जॉब की है. He was an engineer in Kerala government. मेरे बार-बार दिमाग में आती थी ये बात, मेरे पापा ने जॉब की है और जॉब के कारण मैं क्रिकेटर बन नहीं पाया, उनको बोल ही नहीं पाया कभी। So we were coming in from a family which was facing scarcity, which is the story of 95% people in the country. Am I right on that? Yes, sir. तो फिर मैंने सोचा कि क्या करूं क्या, तो I realized that this is not my cup of tea. I am not doing job. I don't want this to happen to my kids. That's how I became an entrepreneur, you know. Giving it all. लोग मेरे से पूछते हैं कि अभी entrepreneurship में I was into a good paying job, high paying job नहीं हो सकता because there's nothing called high into a job structure. लेकिन I was working as a manager into an IT limited and in my last job I worked for corporate for 8.5 years to 9 years. लेकिन फिर भी ऐसा लगता था बार-बार तकलीफ की, I don't know why I am doing what I am doing, you know. For me, job meant just obey your boss. For me, job meant just overbooked. 9 to 6, go to office, come back home, go to office, come back home. लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं जो सोच रहा हूँ वही आपके लिए सही है। You know, you need to have your own thought process. अभी सब क्रिकेटर बन जाएंगे तो तेंदुलकर कौन बनेगा? सब आईएएस बन जाएंगे तो बाकी काम कौन करेंगे? You have to figure out. You have to get into a habit of sitting with yourself. आपको ये हैबिट डालनी चाहिए. Now you are into a phase of life. मैं 12 तक बताया आपको. आप you started making choices. क्यूरिकुलम वाइज जब आप 12वीं क्लास में पढ़ते थे, जब आप 17 साल के थे, उस समय से आपको क्यूरिकुलम ने सिखाया कि व्हाट यू हैव टू मेक योर ओन चॉइसेस. दिस वाज द लर्निंग. जैसे जैसे आप ग्रो होएंगे, अभी आप ग्रेजुएशन करके आए हैं, फिर एमबीए करेंगे, फिर कॉर्पोरेट में जाएंगे, लाइफ विल नॉट रिमेन द सेम. आई एम टेलिंग यू दैट. Now, once you get a corporate job, you walk into a job structure, you will have lunches in the prefixed hours that they give you. Okay? आप 9 घंटे की शिफ्ट में आपको 1 घंटे का ब्रेक मिलेगा, हाफ एन आवर का, 1 और 15 मिनट का. तो आर यू प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर दैट लाइफ? दैट्स द क्वेश्चन. आर यू रेडी? बिकॉज आपको अगर लाइफ में अच्छा करना है, यू हैव टू बी रेडी. इफ अ बैट्समैन गोज ऑन द पिच एंड सेज हे आई एम नॉट रेडी एट द मोमेंट, ही इज आउट. So you have to prepare yourself for that demands of life, you know. I'll just put in a small story here which might end up helping you understand a little thing more. So there was this guy like me who was very fond of reading newspaper. एक बार एक corporate professional होता है, उसको किताब पढ़ने की, उसको न्यूज़पेपर पढ़ने की बहुत आदत होती है. He was very much fond of keeping himself aware, you know, and lot of information will go on reading newspaper. तो जब बैचलर था उस टाइम तो काफी टाइम होता था न्यूज़पेपर पढ़ने का, बाथरूम में जाकर भी न्यूज़पेपर पढ़ता था. उसके बाद जब बाहर निकला वहां से तो फिर जॉब लग गई तो थोड़ा पढ़ना कम हो गया. अब उसकी शादी हो गई और कम हो गया न्यूज़पेपर पढ़ना, बट हिज हॉबी वाज रीडिंग न्यूज़पेपर. अभी थोड़ा और आगे बढ़ गया, लाइक उसका एक बेबी भी हो गया, उसकी एक लिटिल बेबी, और जब भी वो न्यूज़पेपर पढ़ता था घर में बैठ के, उसकी बेबी उसको तंग करती थी, पापा प्लीज प्ले विद मी, प्लीज प्ले विद मी, प्ले विद मी. अभी उनकी सेम पेज. तो एक बार वो बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है अपनी बालकनी में, सोफा कवर पे बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है और उसकी बेबी उसको तंग कर रही होती है, पापा प्लीज प्ले विद मी, प्ले. ही वाज रीडिंग समथिंग रियली इंपॉर्टेंट. तो उसको तंग कर रहा होता है, पापा प्लीज प्ले विद मी, प्ले विद मी, प्ले विद मी. तो पापा परेशान हो गए, बोले मैं क्या करूं. पापा को एक आइडिया आया. तो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, तो न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज में, थैंक यू सो मच फॉर दैट. तो न्यूज़पेपर के उस पेज में सामने एक कुरियर कंपनी का ऐड होता है. कुरियर कंपनी की ऐड में एक वर्ल्ड मैप होता है. पापा वर्ल्ड मैप को लेते हैं और यूं फाड़ देते हैं और नीचे फेंक देते हैं और अपनी बेटी को बोलते हैं यू करेक्ट द मैप एंड पापा विल प्ले विद यू. आप ये मैप जब सही कर देंगे पापा विल प्ले विद यू. और पापा ने सोचा मेरी बेटी को ये नहीं पता कि एशिया कहां पे है, उनको ये नहीं पता अफ्रीका कहां पे है, उसको ये नहीं पता ग्रीनलैंड कहां पे है, तो मैप नहीं करेक्ट कर नहीं सकती. दिस इज व्हाट ही थॉट. And he started reading the newspaper. Exactly after 5 minutes, the baby comes back and says, Papa, I'm done. And father was like astonished. How is he going to do? What's he going to do? पापा उसको ध्यान से देख ही रहे थे, तो वो बेटी बोलती, पापा मैं जानती हूँ आप क्यों आश्चर्यचकित होकर मेरे को देख रहे हो. आपको लगता है कि मेरी बेटी को ये नहीं पता कि एशिया कहाँ पे है, अफ्रीका कहाँ पे है, कहाँ
कहाँ पे ग्रीनलैंड है, कहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, कहाँ पे ऑस्ट्रिया है, कहाँ पे फ्रांस है, कहाँ पे इटली है। लेकिन मैंने मैप कैसे बना दिया, आप एक चीज मिस कर गए। जब आप वो पेपर फाड़ रहे थे, आगे में वर्ल्ड का मैप था और पीछे में फेस ऑफ द मैन था, एक इंसान का फेस था। मेरे को ये तो नहीं पता कि ग्रीनलैंड कहाँ पे है, मेरे को ये नहीं पता ऑस्ट्रेलिया What is the learning? The learning is you correct the man and the world gets corrected. आपने एक बार इंसान को सही किया, पूरी दुनिया सही हो जाती है. It is high time for you people to start working on yourself each passing day with utter seriousness. I'm sorry, but I will tell you about the happenings in the market. It is really a fearful situation. आप एक ऐसे situation में यहाँ आए हैं इस साल में जब pandemic has completely blasted the economy. क्या आपने कभी सोचा था कि आप 3 महीने 4 महीने जेल में बंद हो जाएंगे? I'm sorry for calling the house a jail, but once you cannot move out of your house, it is more of a jail. 10-15 दिन तो बहुत मजा आया, चलो कॉलेज नहीं जाना है, चलो घर में ही खाना है, खूब घर में एक्सपेरिमेंट हो, ये बनाओ वो बनाओ. लेकिन इंसान he gets bored. You know what I mean? तो अभी जब बोल रहे हो लगा क्या तो 3 महीने आप जेल काट के आए, पूरी इकोनॉमी ठप हो गई. इसका क्या जॉब मार्केट में असर पड़ा होगा? Yes, sir. क्या इससे लोगों की जॉब गई होगी? Yes, sir. क्या इससे कॉर्पोरेट का प्रॉफिट कम हुआ होगा? Yes, sir. इसका मतलब आपकी लाइफ आगे टफ है कि आसान है? Tough है. इसका मतलब आपको क्या करना चाहिए? Right. You have to start working on yourself from today onwards. It is really important. एक बार पहाड़ की चोटी से 2 बीज, एक लेफ्ट साइड और दूसरी राइट के साइड. Listen to this very carefully. My intention is to come and contribute something to your thought process, which will help you keep moving forward in life. They say you fly. If you cannot fly, you run. If you cannot run, you walk. If you cannot walk, you crawl. The idea is to keep moving forward. The idea is to keep moving forward. और मैं आपको ये बताने आया हूँ, I don't see any reason कि आप IIMs के बच्चे से compete नहीं करते. आप कर सकते, मैं आपको बोलता हूँ, क्योंकि and what I say has a reason behind it. The reason is we live in an era of pink slip. आज हम pink slip के era में रहते हैं. आप MBA के बच्चे हो, have you ever heard of pink slip? तो आपको थोड़ा इंसाइटफुल होना, आपको देखना मार्केट में चल क्या रहा है. आप जब बात करो तो अगले को समझना चाहिए कि आप MBA के बच्चे हो. There has to be a difference between engineering student. If you talk to an engineer, he'll talk about technology more, he'll talk about machines more. I'm not an engineer. If you ask me what is an engineer, मेरे हिसाब से जो इंजन के नियर है वही इंजीनियर है. You are not supposed to all engineers here. और MBA का बच्चा वो है जब मैं can I tell you a little story of mine, please? Do you want to know who is Amish? So I belong to a very small town out there in my life. So once I came to Delhi, I realized that there's a lot of exposure that I need. So आप 3 साल के बाद मैंने ऐसा सोचा कि मेरे को मेरा कॉन्फिडेंस कम है, मैं दिल्ली के लोगों से कॉम्पीट करता हूँ. यहाँ पे देश विदेश के अच्छे बच्चे आए हैं. It was a tier A college, अंतरराज कॉलेज. तो मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा कम था. मैं पापा ने बोला बेटा तू MBA कर ले. पापा कुछ करने लगे. मैंने बोला नहीं पापा, मेरे को भी MBA नहीं करना. मेरे को लगता है कि मेरे को जॉब में जाके कुछ थोड़ा सीखना चाहिए. Then I will go for MBA. I don't know certain understanding. But my father said no, you don't have to. But I made my decision and I was happy I made my decision. क्योंकि आपकी लाइफ सबसे ज्यादा किसकी है? सबसे ज्यादा आपको कौन, who knows you the most? Yourself. So my point to you is you should always get into a habit of making decisions. To be more correct, you should always focus on making right decisions for your life. Right decisions for your life. It is really important. So I made my decision. My first job happened in Citibank. Citibank में जब मेरी पहले महीने की सैलरी आई, मेरी आत्मा तृप्त हो गई. मेरे को बहुत खुशी हुई. खुशी में आज आपसे बयान नहीं कर सकता. सेकेंड मंथ की जब सैलरी आई, आत्मा उसकी दर बार आती है. सेकेंड ईयर में इट वॉज इवन बेटर सिचुएशन. लेकिन जब थर्ड मंथ की सैलरी आई तो मेरा दुनिया में रियल वेलकम हुआ. मैं आपको बताता हूँ क्यों. याद रखना मैंने क्यों ऐसा बोला. My third month salary was the real welcome to the world. क्योंकि जिस कॉर्पोरेट के साथ मैंने काम करना शुरू किया, उसने चूज किया मेरे साथ कॉर्पोरेट नहीं करने का. अगर आप किसी एजेंसी में काम करते थे, कॉर्पोरेट्स नेवर कॉर्पोरेट. ओके, तो जब आप अच्छे कॉर्पोरेट में अच्छी एजेंसी में काम करते हैं, एजेंसी में आप जब जाओ तो आपकी खूब वेरिफिकेशन होती है पीछे. तो वेरिफिकेशन उन्होंने मेरे पापा को भेज दी मेरे घर पे और मैं तो खूब
मजे में था कि मेरे पापा को पता ही नहीं, मैं तो जॉब भी कर रहा हूँ, मैं पापा को बोलूँगा मैं तो कैट दिया, मेरा हुआ नहीं, कैट भी दिया, रैट भी दिया, मैग भी दिया, हुआ नहीं। पापा को क्या पता चलेगा, पापा इज बिजी इन हिज ओन वर्ल्ड। लेकिन तीसरे महीने मेरे पास फोन आ गया पापा का, बेटा आर यू वर्किंग समवेयर? और मैं काफी स्मार्टली हाइड करने की कोशिश की, पापा ने कहा नॉट वर्किंग एनीवेयर, लेकिन बोलते हैं बात तो बात होता है। इसे तभी साथ व्हाट वी लव लाइक जी आ रही है, जी आ रही है, यू नो, एंड ही गॉट लिटिल एंग्री। He said, why don't you understand what I am telling you? He got angry, but that's fine. He did not speak to me for 6 months. But that's okay. I made my own decisions in my life. I was happy about it. If I go back to my life and see it today as an onlooker, I think what I did was really right. Because once I went for MBA, post my job, I had built an understanding and of communication skill. I was able to express myself a little better and do the case studies. आपके 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 एज ग्रुप में, आपके कोर्स में कम्युनिकेशन स्किल विल प्ले द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल कैसे इंप्रूव करनी है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है फ्रॉम डे वन। टू समवन, जैसे कोई यूके का बच्चा है, अच्छा इंग्लिश बोलने का मतलब कम्युनिकेशन स्किल ये नहीं कि आप बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हो, आप अच्छे स्पीकर हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। You have to understand, you have to express yourself with utter honesty, and you have to appear as if you have a thoughtful mind. This is what communication skill is all about. Okay? Coming back to point, तो मेरा फर्स्ट जॉब 18 महीने चला, फिर मेरा फ्यूल बर्न हो गया, फिर मेरे को लगा कि यार नहीं, दिस इज नॉट समथिंग दैट आई वांट टू डू इन माय लाइफ। व्हाट डू आई डू? आप लोग काफी लकी हैं कि आप लोग डिजिटल एरा को बिलोंग करते हैं। यू हैव ऑल दी फ्लेक्सिबिलिटी टू चेक इट टू योर मोबाइल स्मार्टफोन्स, और वहां पे आप ऐसा कंटेंट देखते हैं जो आपको अच्छा लगता है। यू हैव डिजिटल एक्सेस, बट डू यू हैव डिजिटल एटिकेट? दैट्स द क्वेश्चन दैट आई थ्रो टू द हाउस, कि आप उस पे क्या कंटेंट डिफाइन करेंगे। व्हाई डू आई से व्हाट आई से? बिकॉज आई हैव अ लिटिल डॉटर सियोना, 3 year old, माय डॉटर्स नेम इज सियोना, शी इज 3 years old। अभी उसको हमने नोटिस किया ये चीज, माय वाइफ इज आल्सो वर्किंग, आई एम आल्सो वर्किंग, वी हैव अ नैनी एट होम, व्हाटएवर। तो हमने उसको नोटिस किया कि जब भी हम उसको खाना खिलाने की कोशिश करते हैं तो वो दौड़ के भागती है इधर उधर, परेशान करती है 1 घंटे तक। There's a learning, I'm sharing this with you because there's a learning to it. उसको हम कपड़े पहनाते तो वो फिर उधर भागती है। तो later on we could realize that she is watching a specific kind of cartoon on the mobile, and उसमें कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो ऐसा बिहेव करते हैं, क्योंकि मम्मी जब उनको खाना खिलाती है तो भागती है, उसको इमिटेट करती है। तो इससे आपको क्या लर्निंग हुई कि आप जो डिजिटल कंटेंट देखते हैं उसका आपकी लाइफ पे असर पड़ता है। थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट। तो आप अगर राइटफुल कंटेंट नहीं देखेंगे, क्या आपने ये सब, आपने एमबीए में एडमिशन लेने से पहले आपको महीना 2 महीना 4 महीना तो हो गया, क्या आपने आज तक ये सर्चेस किए कि डिप्रेशन डेटाशीट कंट्री में क्या सिचुएशन है, जॉब मार्केट का क्या सिचुएशन है, स्टॉक मार्केट का क्या सिचुएशन है, व्हाट इज हैपनिंग इन डो जोन्स यूएस, व्हाट इज हैपनिंग इन स्टॉक मार्केट्स इन द वर्ल्ड? इफ यू डोंट नो दैट, आपको याद रखना है, आप जैसे ही फॉर मी once I went for MBA, I thought MBA मतलब मेरा भी आएगा, लेकिन आया बिल्कुल नहीं, you know, because again the same thing started. So again job happened in an IT limited, from there on I moved on to XYZ corporates. That itch and desire to become an entrepreneur kept me driving. I quit my job, लेकिन पैसे नहीं थे मेरे पास, I belong to middle class family, तो मेरे को लगा कि जॉब तो मेरे को नहीं करनी है, तो मैं क्लैरिटी थी, लेकिन मैं कैसा आगे कैसा बढ़ूंगी। So I got into consulting with a US client, started building markets for them. I moved from here to Bangalore. तो पहले मैं दिल्ली में काम करता था, अभी मैं बैंगलोर चला गया गांधीगढ़ शिफ्ट करने को। जब मैं बैंगलोर जा रहा था तो मेरे से लोगों ने बोला कि अमीश यू डोंट नो लोकल लैंग्वेज ऑफ बैंगलोर, व्हाई यू आर गोइंग देयर। फिर लोगों ने बताया अमीश यू आर नॉट एन आईटी गाय, दैट्स एन आईटी सिटी। लेकिन हमेशा याद रखना, फॉर पीपल टू पुल यू डाउन दे हैव टू बी बिलो यू। 90% पीपल विल पुल यू डाउन। हम एक ऐसी इंडस्ट्री से आते हैं, मैं इस इंडस्ट्री में काम करता हूँ, स्पीकिंग इंडस्ट्री में, हमारे सेशन में ऐसे लोग बैठते हैं जो 70% हमें जज करने बैठे कि बात कैसी कर रहा है। ऐसे तो बहुत देखे, ऐसे तो बहुत आते हैं, यू नो। सो आई फेस द चैलेंज डे टू डे बेसिस। तो मैं लोगों को बताता हूँ, हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पे 70% लोग भगवान में विश्वास करते हैं, 30% करते नहीं। This is statistics. So हम कह रहे हैं, you know, the idea is to get into a relationship which will help both of us move forward in life. That's really important. आपको एक अच्छी बुक बताता हूँ, The Magic of Thinking Big। घर जाओगे, Amazon पे जाके ऑर्डर कर देना। It will really change something in me and get into insightful content. Read Business Today daily. That's really important. आप बोलते मेरा कम्युनिकेशन स्किल कैसे इंप्रूव हो? क्या एक यूके के बच्चे को अंग्रेजी सिखाने की जरूरत पड़ती है? क्या आपको हिंदी सिखाने की जरूरत पड़ी? इसका कारण क्या है? Let us understand how our mind pattern is. Mind pattern is
अगर आप किसी इन्वायरमेंट में खुद को मर्ज करते हो, then that skill becomes learnable for you. So if you not read literature, if you not read good books, if you not practice, if you keep thinking कि लोग मेरा क्या मजाक उड़ाएंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. I tell you, once I participated in debate you for the first time, I was literally laughed at. That incident changed something in me, but that's okay, you know. At least I tried. You know what I mean? Coming back to the story that I was saying, so एक बार माउंटेन के ऊपर से दो सीड, दो बीज, एक माउंटेन की लेफ्ट साइड की तरफ और दूसरा माउंटेन की राइट साइड की तरफ लुढ़कना शुरू हुआ. जब दोनों बीज नीचे पहुंचते हैं तो कुछ सालों में जो पहाड़ की राइट वाला जो बीज था वो it became a humongous tree with beautiful flowers, with lot of fruits, and the beach, the seed on the left side of the mountain, that also grew. वो भी काफी बड़ा हुआ, लेकिन इसके कंपैरिजन में काफी कम बड़ा हुआ. You know, that also had lot of flowers, lot of fruits, लेकिन दोनों में फर्क था. अभी एक बार उस पहाड़ी में, उस माउंटेन हिल में बहुत बड़ा तूफान आया. उस तूफान में सारे पेड़ ढह गए. बहुत उन्हें बिल्कुल ऐसा तूफान आया जो थमने का नाम नहीं लेता. तो अल्टीमेटली दी बिगर ट्री, जो काफी बड़ा हुआ, जिसमें काफी फ्रूट्स थे, काफी बड़ा, जो उस हिल का सबसे बड़ा पेड़ था, आफ्टर सम टाइम इवन इट कुड नॉट सस्टेन, started uprooting itself, you know, uprooted and went on the left side of the mountain. माउंटेन के दूसरी साइड जो पेड़ था, जो साइज में इससे काफी छोटा था, इसके ऊपर जाके यूं बेंट हो गया. You know, अभी तूफान 2-4 घंटे में शांत हुआ, तो ये दोनों पेड़ आपस में बातें करते हैं. Now there's a learning out here, okay? दोनों पेड़ आपस में बात क्या कर रहे होते हैं? बड़ा वाला पेड़ छोटे वाले पेड़ को बताता है कि यार मैं तेरे से इतना बड़ा दिखता हूँ, मेरे तेरे से कम डबल पत्ते होंगे, मेरे में तेरे से डबल तने होंगे, मेरे में तेरे से कम डबल पत्तियां होंगी, डबल फ्रूट्स होंगे, और इस पहाड़ में मैं खुद को सस्टेन कर नहीं पाया, लेकिन तूने कैसे खुद को सस्टेन कर लिया? दिस इज व्हाट आई वांट टू नो. दिस इज समथिंग व्हिच इज आई वांट टू गेट दैट क्लू. हाउ डिड यू डू इट? तो छोटा वाला पेड़ बड़े वाले पेड़ से बोलता है कि हाँ दोस्त, जब तूफान आया तू तो गिर गया, लेकिन मैं खड़ा रहा, क्योंकि जब तू अपनी पत्तियां, अपने फ्रूट्स, अपनी स्टेम बढ़ा रहा था, उस टाइम मैं अपनी जड़ें जमा रहा था. गिव इट अप. Are you investing time into building your roots? That's really important. अगर आप आज जो करते हैं, आप ये सोच के रखना कि आपके आज के जो एक्शंस हैं, टीयर बी कॉलेज की एक टेंडेंसी होती है, टीयर बी बच्चों की, मैं आपको स्टैटिस्टिक्स अगर बताऊं तो बोलते हैं कि आपसे इंटरव्यूअर सवाल पूछता है कि आप जब इंटरव्यू बैठे आप सवाल पूछ जाएंगे, वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years डाउन द लाइन. ये बहुत कॉमन, आप 5 साल के बाद कहां पाते हैं अपने आप को? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है. आपने क्या कभी सोचा वो आपसे ऐसा क्यों पूछ रहा है? बेसिकली ही वांट्स टू नो योर प्लान. आपका प्लान क्या है? You know, so do you have a plan of life today? That's the question. कि आप यहाँ पे मंगलमय कॉलेज में क्यों आए हो? आप यहाँ पे MBA एडमिशन क्यों लिया है? I understand 90% people sitting in the room right now are literally pushed here. इनको MBA करने का मन नहीं था, लेकिन उन्होंने जरूरत MBA कर लिया. क्यों किया? बोला मेरा फ्रेंड भी कर रहा है. और क्यों किया? नहीं, मेरे पापा के एक फ्रेंड ने उनका बेटा भी एडमिशन लिया, मैं क्या करता, मैंने MBA कर लिया. लेकिन आज अगर मैं आपको ये बोलूं कि यू मेड अ रॉन्ग डिसीजन, इट विल बी अनफेयर अगेन. यू ऑलरेडी पुट इन अ लॉट ऑफ मनी. आपको ध्यान रखना है आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर कितना पैसा खर्च किया जो उनकी लिमिट से बाहर है. थिंक अबाउट इट. आपकी कुछ इमोशनल रिस्पांसिबिलिटी है कि नहीं? डू यू थिंक दे हैव टेकन द पेन? डू यू हैव एन इमोशनल रीजन कि अगर मैं यहाँ से अच्छा करूंगा मेरी मम्मी और पापा पूरी लाइफ खुश रहेंगे? दे विल गो एंड टॉक अमंग्स देयर peer group that yes, I send my daughter, I send my son to मंगलमय कॉलेज, वहां पे वो टॉपर है या वहां पे बहुत अच्छा कर रहा है, उसकी अच्छी इंटर्नशिप लगी है. इफ यू रियली वांट टू गेट इनटू गुड स्पेस, आपके आज के एक्शंस आपका फ्यूचर डिफाइन करते हैं. दे से the beliefs you hold, and I want you to have that basic belief that I am born for big things in life. You say you refuse to accept mediocrity. You are the young generation. मैं सबको बोलता हूँ, अगर 19वीं सदी यूके की थी, अगर 20वीं सदी यूएस की थी, तो 21वीं सदी हिंदुस्तान की है. हिंदुस्तान मतलब आप और मैं. आप और मैं. You understand what I mean? One fine day, a man saw an apple falling from the tree. एक बार इस दुनिया में एक इंसान ने पेड़ से फल गिरते हुए देखा और पूरी दुनिया बदल गई.
One fine day, a guy decided to drop his suit and wear a khadi. एक इंसान ने अपना सूट उतार के खादी पहन लिया, उसने पूरी दुनिया पे एक नई थ्योरी दी थी नॉन वायलेंस की। इसी दुनिया में एक 16 साल का बच्चा, वन फाइन डे, 16 ईयर ओल्ड एक 16 साल का बच्चा 22 गज की पिच पे जाता है और बैटिंग शुरू करता है और पूरी क्रिकेट की दुनिया बदल जाती है। What is the learning that you and me can derive? एक चाय वाला आपके देश में प्रधानमंत्री बन गया। Think about it. This is called human potential. What makes you feel that you cannot achieve greatness in life? But to be great, to be doing something better in life, you have to start working on your skill sets today onwards. एक MBA के बच्चे से बात करके अगर अगले को समझ में आया, इसकी बातों में अगर आपको किसी ने कॉम्प्लीमेंट दे दिया कभी कि आपकी बातों से ना बिजनेस की बू आती है, you talk a lot of statistics, तो आपको किक बैठे, मैं आपको बोलता हूँ एक बात कि I'm doing something good, और बात ये वही करोगे अगर एक MBA का बच्चा इंजीनियर से अच्छा बात ना कर पाए तो उसका फायदा क्या? मैनेजर मीन्स व्हाट? You are to be managers of the country. Managers मतलब क्या? Management मतलब you are doing MBA मतलब you want to manage a team tomorrow, you want to do the execution tomorrow, उसके लिए you need to learn certain skill sets and the time is now. Now I want to take your questions, please. Over to you people. Anything that you want to ask me, you wanted to ask something?